So, good morning, guys. My name is Biddu Thaldar, currently working as officer civil engineer in HPCL. सो आज मैं यही बताने वाला हूँ कि एच पी सी एल का जो एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी नोटिफिकेशन तो पब्लिश हो चुका है, आप लोगों को सबको पता है। तो उसके लिए क्या क्या करना है, ठीक है। मेनली आई विल बी फोकसिंग टुडे ऑन द पैटर्न, सिलेबस एंड द स्ट्रेटजी, हाउ टू अप्रोच टुवर्ड्स द एग्ज़ाम, यू अंडरस्टैंड। सो पहले देख लेते हैं कि आज कौन सा टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हम लोग पहले बात करेंगे कि अबाउट एच पी सी एल क्या है। थोड़ा बहुत तो मतलब जानना तो ज़रूरी है, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम के लिए इतना टाइम देंगे आप लोग, तो यू नीड टू हैव लिटिल अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज़ एच पी सी एल एंड what then the important dates, when the last date and all you have to understand for filling the form. Okay, then the pattern, how the marks is distributed, and what amount of time you will get to solve those question. Then where to practice, though many of you are asking about sort of where to practice, which sources we should follow to prepare for the exam particularly. Okay, so that I will discuss today. Don't worry, just watch the video till end, so that your all of your doubts will be clear, no doubt. देन थियोरी और न्यूमेरिकल किस पे ज़्यादा फोकस पड़े, किस में ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। इस चीज़ में भी आज मैं बात करूँगा इन डिटेल, एंड लास्ट में मैं कुछ सैम्पल पेपर क्वेश्चन दिखाऊंगा जो पिछले साल मैंने अपेयर किया था। उस टाइम में जब जो पेपर था उसका, उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। ओके, सो बने रहिए एंड तक। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द अबाउट एच पी सी एल, ठीक है। सो आप लोग को सबको पता है कि एच पी सी एल इज़ अ महारत्न पी एस सी। ओके, महारत्न पी एस यू, you know that there are only few PSUs which are under Maharatna PSU. Okay, so one more thing here, you will be recruited as officer grade, officer. Okay, E2 grade. E2 grade means here will be your basic will be 50,000. Okay, sorry, basic will be 50,000. And talking about CTC, you can see that in the notification it is also mentioned that this year the CTC is around 16.98 lakhs per annum. So this is the some kind of motivation why you should prepare for the exam, why you should prepare for the Maharatna PSU. You understand my point now. You are preparing for the PSU, and PSU is obviously your posting will be all over the India now. Now that is something different, that in which subdivision you are getting in HPCL. Like in HPCL actually there are mainly two refineries, a Vizag refinery and Mumbai refinery. If you get these two refinery, then obviously your posting will be in Vizag or in Mumbai. But the other subdivisions like marketing officer or the other lubes and other there are other few subcategories also. There you will be posted pan India basis. Okay. Don't worry, if you are posted in the remote area, then obviously you have to stay there for a max to max of 3 to 4 years. After that your posting will be changed. ओके, सो इट विल नॉट बी द। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो अबाउट एच पी सी एल थोड़ा बहुत हो गया, इससे ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं, यही मोटिवेशन है, देख लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंट डेट्स। ओके, you know that last date to fill the form is 18th September. So it is very important, if till now if you are not filled the form, you are waiting for the last date or last 2 3 days, so I will suggest you fill the form एज सुन एज पॉसिबल। बिकॉज क्या होता है कि लास्ट के डेट आते आते ना थोड़ा बहुत सर्वर का इशू हो जाता है या फिर पेमेंट का इशू हो जाता है। तो उस केस में मैं तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि पहले से ही आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम डेट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट एग्ज़ाम डेट tentatively November. Okay, so you can say that you have at least 1 to 1.5 to 2 months around this, ठीक है। so within that you have to prepare, okay, max to max of 2 months I guess. Yeah, in November mid or in November starting there will be that exam of HPCL. So prepare for the exam accordingly, prepare your plans accordingly, ठीक है। तो important हो चुका। Now talking about the pattern,
Okay, these are the few sample question I will be sharing with you. Wait for few minutes more. ठीक है, now the pattern. So here you know that टेक्निकल में टोटल 85 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, टोटल 170 क्वेश्चंस, और टाइम कितना मिलेगा 150 मिनट, मीन्स 2.5 आवर टाइम विल बी अलॉटेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ टेक्निकल में 85 क्वेश्चन रहेगा एंड नॉन टेक में क्या रहेगा, नॉन टेक में भी 85 नंबर ऑफ क्वेश्चन ही रहेगा. ठीक है, नाउ नॉन टेक का भी अगर सब डिवीज़न करें, ठीक है, नॉन टेक का सब डिवीज़न करें तो क्या होगा, उसमें रीजनिंग रहेगा 34 मार्क्स, एप्टी means the quant part, that will be again 34 marks, and English will be of 17 marks. Okay, English will be of, wait, sorry, 17 marks. Okay, now रीजनिंग का लेवल कैसा होगा, बहुत कोई पूछ रहा था. तो रीजनिंग का लेवल आई विल से दैट एसएससी जेई लेवल इज़ सेम लेवल रीजनिंग के लिए. ठीक है, एंड एप्टी का लेवल लिट थोड़ा सा हाई होता है, एसएससी जेई से थोड़ा सा टफ ही होता है, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा कैलकुलेटिव भी रहता है एप्टीट्यूड लेवल में. ठीक है, एप्टीट्यूड में तो ग्रेटर देन एसएससी जेई लेवल, बट उतना भी हार्ड नहीं होता है. ठीक है, लेकिन कि जो किया जा सकता है, अभी मैं आपको सैम्पल दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट. एंड इंग्लिश का भी वैसे ही उतना टफ इंग्लिश नहीं रहता. ठीक है, बाकी रहा टेक्निकल में आपको तो पता है, मैं और डिटेल में मैं बाद में इसके लिए बात करूँगा. ठीक है, टेक्निकल में क्या क्या फोकस करना है, उस चीज़ में मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूँगा. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, सो this is all about 85 question technical, 85 question non-tech. Okay, out of which 34 reasoning, 34 FT means the quant part, and 17 marks of English. Okay, pattern is over. Now where to practice. Now this is the question which many of you are asking me to answer. Okay, I think it's the 4 number. ठीक है, so अब होता क्या है कि HPCL का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें टेक्निकल में क्या होता है कि थोड़ा न्यूमेरिकल भी कभी कभी रहता है. ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल, लेकिन वो न्यूमेरिकल उतना हार्ड नहीं रहेगा. ठीक है, तो उसमें उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप तो पहले नोट डाउन कर लीजिए. HPCL का जो PYQ क्वेश्चन है वो आप लोग को करना ही है. ठीक है, उसके साथ क्या करना है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द PYQ क्वेश्चंस. ठीक है, कहाँ से क्या क्या प्रैक्टिस करना है आप लोग को, HPCL का तो करना ही है, उसके साथ अदर PSUs का भी जो पेपर अवेलेबल है ऑनलाइन या फिर कहीं पर. ठीक है, आप वो देख सकते हैं, जैसे CIL भी कभी कभी कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, तो आप वो भी देख सकते हैं क्वेश्चन पैटर्न. ठीक है, थर्डली SSC जेई का जो PYQ है आप उसको भी सॉल्व कीजिए. ठीक है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द मटेरियल्स. ओके, द फॉर HPCL एग्जाम द PYQ फ्रॉम वेयर यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके, along with that I will say that EAC प्री. अब EAC प्री करने से आप क्या मतलब क्या बेनिफिट क्या मिलेगा आप लोग को. HPCL में बहुत सारा थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है. ठीक है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन. अब वो थियोरेटिकल क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ना EAC का जो प्रीलिम्स का जो PYQ है वहाँ से भी कभी कभी पिक कर लेते हैं वो लोग. ठीक है, तो आप लोग अगर टाइम मिलता है तो EAC का प्रीवियस ईयर थोड़ा अटेम्प्ट कीजिए. न्यूमेरिकल ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल आप लोग स्किप कर सकते हैं इनिशियली, बट आप लोग कर लीजिए. और मैं तो पहले से ही बोलता हूँ कि अगर आप EAC और गेट का हॉलिस्टिकली प्रिपरेशन करते तो बाकी सब एग्ज़ाम आपका इजीली क्रैक हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है. लेकिन फिर भी नाउ लेट्स फोकस ऑन HPCL. आप EAC का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम PYQ सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद भी अगर आपको टाइम मिलता है तो हर एक स्टेट का AE JE का भी एग्ज़ाम जो होता है उसका भी आप लोग PYQ फॉलो करते हैं. इसके लिए जैसे कि इसके लिए आप बात करता हूँ मैं बाद में कि आप कौन सा बुक फॉलो करना है, वो मैं बाद में बात करता हूँ. ठीक है ना, बहुत को ये पूछता है कि सर गेट का गेट का जो PYQ है उसको फॉलो करे कि नहीं करे. अब मैं उसमें डिफरेंस बोलता हूँ. अब गेट में क्या होता है, मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आर मेनली आस्क्ड. अब गेट में कैलकुलेटर भी अलाउ रहता है, तो ऑब्वियस बात है कि वो सब क्वेश्चन लेंदी कैलकुलेशन, वो सब क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में HPCL का नहीं आ सकता.
और उसके ऊपर टाइम भी कम रहता है। तो मान के चलो कि आप लोगों को अभी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द HPCL एग्जाम ओनली और SSC JEE और अदर दिस लेवल एग्जाम, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर GATE, means you don't have to prepare for GATE PYQ. Okay, obvious. Now talking about now theoretical और न्यूमेरिकल, इसमें बहुत डिलेमा रहता है, वो तो मैंने अभी बोल ही दिया कि न्यूमेरिकल वर्सेस थ्योरी। इसमें क्या होता है कि आपको पहले ही बोला हो कि 85 क्वेश्चन में टोटल 170 क्वेश्चन, 150 मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर यू. So within that time you cannot solve lengthy questions. You understand my point now? So obviously there will be single liner question. Now this is very important. Mark this point. Single line questions. It is important. You can see, I will show rather the sample set that single line questions are there. Okay, now there are few single line questions based on the theory only, so that you can solve easily, but there are some other single line questions like database questions or some kind of there are few questions actually which you didn't have seen. ओके आप लोगों ने अभी तक कभी देखा नहीं, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत कुछ रहता है। वो आप लोग को कैसे पता चलेगा? वो आप लोग को पता चलेगा आप लोग जब टेस्ट सीरीज़ अपेयर करेंगे, SSC JEE का टेस्ट सीरीज़ अपेयर करेंगे, HPCL का टेस्ट सीरीज़ अपेयर करेंगे, तब जाके आप लोग को पता चलेगा कि कैसा कैसा सिंगल लाइन क्वेश्चन बनता है। जो थोड़ा तो मेरा आप लोग के साथ एडवाइस यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब टेस्ट सीरीज़ देंगे ना, तो उसमें आपका सिंगल लाइन क्वेश्चन प्रिपेयर होते जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे प्रिपेयर करना है? इसको प्रिपेयर करने के लिए बस यही है कि टेस्ट सीरीज़ लगाइए, उसके बाद नोट कर लीजिए उस सिंगल लाइन क्वेश्चन को, ठीक है, और रिवाइज कीजिए अगेन एंड अगेन, बिकॉज दिस क्वेश्चंस यू विल फॉरगेट। बिकॉज इस कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि कंसेप्ट भी नहीं रहता उतना, लेकिन आपको दिमाग में रहना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, सो इस चीज़ को आप लोग माइंड में, और इसके लिए बुक क्या फॉलो कर सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन का एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 द बुक आता है, जिसमें क्या होता है सब AE लेवल, स्टेट AE लेवल, सॉरी JEE लेवल, ठीक है, थोड़ा ESE का, SSC JEE का, अदर एग्ज़ाम का क्वेश्चन कंपाइल करके दिया हुआ है, हर एक चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। सो आप वहाँ पर सिंगल लाइन क्वेश्चन के लिए आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड रही बात फार्मूलाज को, अब ऑब्वियसली फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि मैं दिखाऊंगा कि कभी कभी HPCL ऑल्सो फार्मूला भी डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, now talking about the level of question paper, see which kind of questions they ask mainly। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये मेरा लास्ट ईयर का सेट है। ठीक है, HPCL का जो मैंने अपेयर किया था, जिसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है। ओके, जैसे आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, सिनोनिम्स मतलब उसका सेम उसका मीनिंग होगा, क्या है, कौन सा वर्ड है, पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब आपको पता है सरकमफेरेंस जो होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, मार्जिन, सेंटर, कोर, हार्ट, कुछ भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और इस सब क्वेश्चन में आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपको देख के ही पता चल जाएगा ये आपसे होगा कि नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। आफ्टर द सोमनाथ टेम्पल वॉज डैश बाय गजनी, इट वॉज डैश बाय द किंग भोजा। सो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि पहले उसको डिस्ट्रॉयड होगा, उसके बाद इट वॉज रीबिल्ट होगा। सो देखिए डिस्ट्रॉयड एंड रीबिल्ट, ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा क्योंकि वॉज लिखा हुआ है यहाँ पर, तो थर्ड टेंस ही यूज़ होगा। सो डिस्ट्रॉयड, इजी क्वेश्चन। then you can see that select the most appropriate option in the blank, fill in the blank। okay, the children dress cricket in the park when their mother come to pick them up। तो had been playing होगा क्योंकि children played नहीं होगा, children had played भी नहीं होगा, और play तो नहीं होगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी उन्होंने गिवन किया है, ये सही ऑप्शन है, और ये मैंने चूजन ऑप्शन है। ठीक है, नाउ ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखा है थोड़ा बहुत, कि आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, शॉपकीपर वेट्स 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg बाई सेलिंग 5 kg ऑफ शुगर एट द कॉस्ट ऑफ 18 पर kg, द प्रॉफिट अर्न। अब नॉर्मली अगर देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस उसमें
1 kg का वो 900 ग्राम में बेच रहा है, ठीक है, 900 ग्राम वो प्रोवाइड कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 0.9 इंटू 5 kg बेच रहा है इंटू 18 81, एंड सेलिंग प्राइस क्या है 1 kg बोल के वो बेच रहा है, तो 5 इंटू 1 इंटू 18 90, तो प्रॉफिट पूछा है तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट विल बी 9। अब आप अगर इसको शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो 1 kg मतलब क्या 1000 ग्राम, 1000 ग्राम डिवाइड माइनस 900, सो मतलब 0.1 kg, तो 0.1 kg इंटू 5 इंटू 18 दैट विल बी 9। सिंपल क्वेश्चन, नो नीड टू हरी अबाउट इट। सो the second question, 1/3 of the first number is equals to the 2/5 of the second number. Let's suppose first number is x, second number is y, so x by 3 is equals to 2/5 of y. Okay, now this is the first equation. Second equation, what 32 is added to the first number, 32 is added to the first number, and that will become the sixth and the second number. So you have two equation, two unknowns, so you can easily solve this question. Okay, you can understand the level of question here. Okay, now this is also a simple question, you can easily understand if you go through this. Okay, now they're talking about technical, I'm saying let's see which type of technical they are asking mainly. Here they is saying that permissible compressive stress of concrete is C, so modular ratio, so modular ratio M we know 280 by 3 sigma CBC, where sigma CBC the compressive strength. Now this so here C is mentioned 280 by 3C. now अब यहाँ बात आता है कि आप ऑप्शन को जल्दी जल्दी कैसे एलिमिनेट करें, ठीक है। अब देखिए, इसको देखिए और यहाँ पर देखिए, यूनिट चेंज आप लोग को यूनिट में ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सब चीज़ सेम है, तो यूनिट में ध्यान दे के कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए पहले तो सी स्क्वायर है यहाँ पर, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3C है, 280 बाई 3C है, 280 ऊपर 280 है, इसके साथ एक जीरो है, इसका मतलब क्या ऑब्वियसली यूनिट में कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन 280 है और नीचे 3, तो दोनों में 280 एंड 3 होना चाहिए। देखिए 280 है लेकिन नीचे 3 नहीं है, नहीं, और यहाँ पर भी 280 नीचे 2 है, ये भी नहीं होगा, क्या है 280 by 3 sigma CBC. So this question you have to do very fast calculation. Okay, now design period of the pipe connected to the several treatment units of the water tank. आप लोग को तो ये पता ही है 30 years के लिए हम लोग मिले डिज़ाइन करते हैं पाइप्स को, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है, दिस इज कॉल्ड सिंगल लाइन क्वेश्चन, single line question. This type of question you will definitely find in youth. You can if you don't have the access to youth, you can join our telegram group called as civil duo. There I have given already the PDF of these two group, you can join, or if you have any doubts then you can obviously ask there also, we are always there to help you. Now talking about the third question, here you can say that the channel, rectangular channel के लिए वायर लेंथ का जो मतलब जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है, जो सबको पता ही रहता है, एक चैनल का, एक रेक्टेंगल चैनल का होता है और एक ट्राइंगल का होता है। तो रेक्टेंगल चैनल का फॉर्मूला ये होता है 2/3 ऑफ सीरीज। देखिए चूज एन ऑप्शन 3, करेक्ट ऑप्शन 3। सो दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए सेंट्रॉइड ऑफ द क्वार्टर सर्कल, आप लोग को शायद ये पता होगा। मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर इसका सेंट्रॉइड मान लीजिए ये है, तो इसका सेंट्रॉइड का जो ये जो डिस्टेंस होगा दैट होगा 4r/3π, ये है r, ठीक है। तो सिमिलरली यू कैन आंसर इट इजीली 4r/3π। ना आप देख सकते हैं दिस टाइप के क्वेश्चन में कि टाइम थोड़ा भी टाइम ले लगेगा, अगर आपको आता है तो आपको आता है। अब ये भी देखिए, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में पूछा है, सॉइल फॉल्स अबव द ए लाइन एंड हैविंग लिक्विड लिमिट इज 40। ना आप लोग को तो पता होगा कि मान लीजिए ये है ए लाइन, ठीक है, 35 50 20, ठीक है। अब इसके ऊपर जो सॉइल होता है वो होता है क्ले, और इसके नीचे जो होता है वो होता है सिल्ट, ठीक है। अब ये होता है हम लोग का लिक्विड लिमिट, ये होता है आईपी, प्लास्टिक इंडेक्स आईपी, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है क्या कि सॉइल लाइज फॉल अबव द लाइन, मतलब क्ले तो होगा ही, देखिए मतलब सिल्ट नहीं होगा, ठीक है। अब रही बात कि हाईली कंप्रेसिबल, मीडियम कंप्रेसिबल और सॉरी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल एंड लो कंप्रेसिबल। अब यहाँ पर बोला लिक्विड लिमिट इज 40 मीन्स रेंज दियर, सो यहाँ पर बीच में जो होगा ये होगा इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, यहाँ होता तो होता हाईली कंप्रेसिबल, यहाँ होता तो होता लो कंप्रेसिबल। आप देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिंपल क्वेश्चन दे आर आस्किंग नाउअडेज, सो यू कैन इजीली सॉल्व दिस, ठीक है। एंड लास्टली
have any doubt, okay, then you can reach us through our Telegram channel. I will provide the link in the description also. On the Telegram channel is Civil Duo, okay. I will share in the description, okay. Don't worry about it. And also you can directly comment us in the video, or we will definitely help you as much as possible, ठीक है. सो कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं पर भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है. सो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर sincerely for the exam and don't waste your time, ठीक है. It's very crucial for you, okay. Thank you. चलो बाय.